Hello, students. Welcome back. So, in today's class, we will be talking about what is the meiosis division and why it is important for the cell to divide meiotically. So far अभी तक हमने पढ़ा है माइटोसिस के बारे में that the function of the mitosis is to help the cell to grow and to repair and to regenerate, right? And the one more thing that we have already talked about, that the basic difference between the mitosis and meiosis was that mitosis is called as equational division क्योंकि mitosis में जो chromosome number है that stays constant, but meiosis is called as the reductional division क्योंकि meiosis में the chromosome number reduces to half, right? So first and the foremost thing that you do need to remember about the meiosis, that meiosis भी एक टाइप की सेल डिवीजन है, बट meiosis में जो क्रोमोसोम नंबर है that reduces to half. सो पेरेंट और डॉटर सेल में अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो डॉटर सेल्स में देयर विल बी ओनली हाफ ऑफ द क्रोमोसोम. तो अगर पेरेंट सेल के पास दो कॉपीज है क्रोमोसोम्स की तो विच वी कॉल एज द डिप्लॉइड सेल, तो जो डॉटर सेल्स होंगी they will only be having a single copy of the chromosome, so it's called as the haploid cells. So the parent cell will be diploid and the daughter cells will be the haploid. Second thing, जब भी हमने mitosis के बारे में पढ़ा, we said mitosis always results in the formation of the two daughter cells. But the meiosis है, उसमें one single parent cell divides and it give rise to four daughter cells. अब जनरली जब सेल एक ही बार डिवाइड करता है तो इट गिव राइज टू टू डॉटर सेल्स. सो दैट मींस मियोसिस में एक पेरेंट सेल जब डिवीजन स्टार्ट करता है इट डजंट डिवाइड्स वंस बट इट डिवाइड्स ट्वाइस. तो दिस इज द फर्स्ट डिविजन जिसमें एक पेरेंट सेल से बने दो डॉटर सेल्स एंड देन दीज टू डॉटर सेल्स फर्दर डिवाइड एंड दैट इज हाउ वी गॉट द फोर डॉटर सेल्स. तो एक पेरेंट सेल से चार डॉटर सेल्स बने, बट दिस वाज नॉट बाय द सिंगल डिविजन एज वी सी इन द माइटोसिस. इसमें द पेरेंट सेल डिवाइड्स twice. First, it gives rise to two daughter cells, and then these two daughter cells divides again to form the four daughter cells. So mitosis में two daughter cells are formed, meiosis में four daughter cells are formed, and meiosis में जो सेल है वो दो बार डिवाइड करता है, बट माइटोसिस में सेल एक ही बार डिवाइड करता है. अब क्वेश्चन ये है that why do a cell needs to divide twice in case of the meiosis division. So let's say this is a cell in the, let's start with the G1 phase. So let's say this is a diploid cell, right? And इसमें जो chromosome number है that is just one. क्योंकि ये diploid है, obviously it will be having the two copies of the chromosomes. This is how it looks like in the G1 phase. G1 phase से cell moved into the S phase. Now remember what happens in the S phase. S phase में जो DNA है वो replicate करता है. क्रोमोसोम्स अभी भी दो ही रहेंगे, बट ये जो क्रोमोसोम्स हैं दे विल नाउ बिकम डुप्लीकेटेड. इसका जो डीएनए कंटेंट है वो डुप्लीकेट हो जाएगा. यहाँ पे आपको एक सिंगल क्रोमेटिन फाइबर देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स में यू सी ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ द टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, राइट? एंड सेम चीज हमें कहाँ देखने को मिलेगी? द सेम थिंग वी विल सी इन द G2 phase. G2 phase में भी the chromosomes will be duplicate. क्रोमोसोम नंबर अभी भी दो ही है, but it's duplicated because it contains now the two sister chromatids क्योंकि डीएनए की replication हो गई in the S phase, right? Now talking about जब ये G2 phase से फर्स्ट साइकिल ऑफ मियोसिस में एंटर करता है. अभी हमने क्या कहा? मियोसिस में सेल दो बार डिवाइड करता है. देयर आर टू सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ द
न्यूक्लियर डिविजन। न्यूक्लियस 2 बार डिवाइड करता है बट डीएनए सिर्फ एक ही बार रेप्लिकेट करता है, विच इज इन द एस फेज। Now we call these two phases of the sequential division as the meiosis 1 and meiosis 2. So let's say this cell from the G2 phase enters the meiosis 1. तो meiosis 1 में ये जो दो क्रोमोसोम्स पेयर हैं। अब यहाँ पे कुछ और टर्म्स हैं दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स से दिस इज द क्रोमोसोम। सो इस क्रोमोसोम में ये जो दो आर्म्स हैं, वी कॉल देम एज sister chromatids. This I guess is pretty much clear because we have studied about it multiple times. अब क्योंकि डिप्लॉइड सेल में एक क्रोमोसोम नहीं है, हर क्रोमोसोम की पोजीशन पे एक पूरा का पूरा पेयर है। तो ये जो क्रोमोसोम पेयर है, टू दिस वी कॉल एज द होमोलोगस पेयर, राइट। तो अगर तो ये डिप्लॉइड सेल है तो इसमें है पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम। जैसे ह्यूमन सेल में वी बेटर नॉट से 46 क्रोमोसोम्स, हम कहते हैं 23 पेयर्स हैं। और अगर हम चाहते हैं कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाए तो हमें इन पेयर्स को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट। तो मियोसिस 1 में होता क्या है कि ये जो क्रोमोसोम पेयर्स हैं, separate. So now each of the daughter cells only contain one of the chromosomes, right? So this was a diploid cell. Over here it was a diploid cell. Over here it was a diploid cell क्योंकि इन सब में दो दो chromosomes हैं. But the daughter cells formed after the first meiosis division only contain half of the chromosomes, so that is haploid. तो ये दोनों के दोनों daughter cells क्या है, haploid. So that means meiosis 1 में what happens? In meiosis 1, the homologous pair of the chromosomes separate. अगर होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो ऑब्वियसली जो डॉटर सेल्स बनेगी दे विल बी हैप्लॉइड। तो दैट मीन्स क्रोमोसोम नंबर ऑलरेडी हाफ में रिड्यूस हो चुका है। क्रोमोसोम नंबर ऑलरेडी हाफ में रिड्यूस हो चुका है, देन व्हाई डू वी नीड टू परफॉर्म द सेकंड मियोसिस डिवीजन, राइट। क्योंकि हमारा पर्पस ही मियोसिस का क्या है, क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना। तो अगर यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर इज ऑलरेडी हाफ्ड, पेरेंट सेल में दो दो क्रोमोसोम थे, अब यहाँ पे जो डॉटर सेल्स हैं उसमें एक एक क्रोमोसोम्स हैं, तो व्हाई डू वी वांट कि ये जो डॉटर सेल्स हैं ये दूसरी डिवीजन करें, क्योंकि मियोसिस में सेल कितनी बार डिवाइड करता है, 2 बार। नाउ यू लुक एट दिस पेरेंट सेल एंड यू लुक एट दिस डॉटर सेल्स। बेशक क्रोमोसोम नंबर has reduced to half, but what about the DNA content? Normally जो जीवन फेज में सेल था उसका डीएनए कंटेंट कुछ ऐसा दिखता था। That means one chromosome only contain the one chromatin fiber. But अभी जो डॉटर सेल्स बनी है उसके जो क्रोमोसोम्स हैं उसके पास डबल द डीएनए कंटेंट है, क्योंकि यहाँ तो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो what happens during the meiosis 2? मियोसिस 2 में किसकी सेपरेशन होगी, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्योंकि अगर सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होंगी तो क्रोमोसोम नंबर तो ऑलरेडी हाफ है, बट द डीएनए कंटेंट इज डबल्ड। तो नाउ दीज सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट, दोनों डॉटर सेल्स के पास आएंगी एक सिस्टर क्रोमेटिड। so that is how it has restored the number of the chromosomes as well as the number of the number of the DNA content that needs to be present inside the gametes, right? So let's say अगर हम generally कहें कि एक parent cell में 46 chromosomes हैं और 10 picograms DNA है, अगर ये स्पर्म सेल्स बनाएंगे या एग सेल्स बनाएंगे विच आर गेमीट्स, तो गेमीट्स में यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स होने चाहिए, क्योंकि हमने जेनेटिक क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना है। क्रोमोसोम बना है डीएनए से, अगर क्रोमोसोम हाफ होगा तो ये जो 10 पिकोग्राम्स डीएनए है ये भी कितना हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो रिस्टोर टू 5 पिकोग्राम्स। अब इसको यहाँ पे इस फ्लो चार्ट पे अप्लाई करते हैं। इफ वी स्टार्ट विद 46 chromosome, sorry, 2 chromosomes, and let's say
1 पिकोग्राम ऑफ द डीएनए। जो भी डॉटर सेल्स बनने हैं यहाँ पे, उसमें एक क्रोमोसोम होना चाहिए एंड 0.5 पिकोग्राम्स ऑफ द डीएनए होना चाहिए। अब यहाँ पे जाते जाते क्रोमोसोम नंबर तो दो ही है, बट व्हाट हैपेंस टू द अमाउंट ऑफ डीएनए? दिस बिकम्स 2 पिकोग्राम। यहाँ पे भी क्रोमोसोम्स आर टू, द डीएनए कंटेंट इज 2 पिकोग्राम्स। यहाँ पे मियोसिस वन में क्रोमोसोम नंबर तो हो गया 1 and 1, क्रोमोसोम नंबर हैज बीन रिड्यूस्ड टू हाफ, डीएनए कंटेंट इज आल्सो रिड्यूस्ड टू हाफ, which is 1 picogram and 1 picogram. But again, look at this. हमने कहा जब एक सेल जिसमें दो क्रोमोसोम हो, जब ये मियोसिस करेगा, तो डॉटर सेल्स के पास एक क्रोमोसोम और हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट होगा, विच इज 0.5 पिकोग्राम्स। तो 0.5 पिकोग्राम्स के हिसाब से अभी भी इसके पास ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट है। सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर? क्रोमोसोम नंबर 1, डीएनए कंटेंट 1 पिकोग्राम, इसने करी मियोसिस 2, क्रोमोसोम नंबर रहा 1, क्रोमोसोम नंबर रहा 1, बट द डीएनए कंटेंट बिकम्स 0.5 picograms, right? So if you see the meiosis 2 is equivalent to mitosis, क्योंकि mitosis में भी क्रोमोसोम नंबर सेम रहता था, डीएनए कंटेंट हाफ हो जाता था, और वहां पे भी दो डॉटर सेल्स बनती हैं, राइट? सो इसीलिए यहाँ पे सेल को दो बार डिवाइड करने की जरूरत है। फर्स्ट टाइम ताकि वो अपने होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर सके, सेकंड टाइम ताकि उसने वो जो दो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, डुप्लीकेटेड डीएनए कंटेंट है, उसको हाफ कर सके, राइट? अब मियोसिस की सिग्निफिकेंस है क्या? व्हाई डू सेल नीड्स टू डिवाइड बाय द माइटोसिस, सॉरी मियोसिस? सो यू नो, लेट्स टॉक अबाउट द ह्यूमंस ओनली। हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स हैं? वी हैव 46 क्रोमोसोम्स। और जो भी अगली जनरेशन आती है उसमें भी 46 क्रोमोसोम्स हैं। सो लेट्स से एक पेरेंट सेल के पास है 46 क्रोमोसोम, दूसरे पेरेंट सेल के पास है 46 क्रोमोसोम्स, उनकी नेक्स्ट जनरेशन में भी कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46। 46 मतलब 23 पेयर्स। तो जो भी हमारे सोमेटिक सेल्स में क्रोमोसोम्स हैं, यहां से जो गैमीट्स बनेंगे, तो दीज सेल्स विच undergo the gamete formation, these are called as the germ cells. दो तरह के सेल्स हैं बॉडी में, सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स जो बेसिक ग्रोथ रिपेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड जर्म सेल्स जो गैमीट फॉर्मेशन करवाते हैं। माइटोसिस हमारे सोमैटिक सेल्स में होती है, मियोसिस हमारे जर्म सेल्स में होती है। जर्म सेल्स से बने यहाँ पे गैमीट्स, एग एंड द स्पर्म। क्योंकि मियोसिस हुई, क्रोमोसोम नंबर हो गया हाफ, और जब हुई फर्टिलाइजेशन, तो अगेन जाइगोट में ये जो 46 क्रोमोसोम का नंबर था, ये फिर से क्या हो गया? रीस्टोर, राइट? तो जर्म सेल्स आर द सेल्स दैट शो द मियोसिस, क्योंकि मियोसिस के टाइम पे हमें क्रोमोसोम नंबर चाहिए हाफ, ताकि दोनों ही पेरेंट एक एक that contribute करें, and when it goes to the zygote, it again restore the same number of chromosome as it is in the daughter cells, sorry, as it in the parent cells, right? So we can say meiosis का काम है क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना, बट फर्टिलाइजेशन का काम है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में सेम क्रोमोसोम नंबर को रिस्टोर करना, विच इज डिप्लॉयड स्टेज, right? So in the meiosis, as we know, it's dividing, the cells are dividing twice. First division को कहते हैं meiosis one, दूसरी को कहते हैं meiosis two. Phases are same, but it's just that the prophase one is a bit different than the meiosis two and the mitosis. क्योंकि meiosis two तो मैंने आपको बताया, it's pretty much equivalent to the mitosis only, right? तो meiosis one हम करेंगे next class में. So far, what you have to do, you have to first of all must revise this, and also revise the mitosis first, then understand why do the cell need to do the meiosis, यहाँ पे दो cycles में क्यों होती है. You should have basic outline of the concept. And secondly, about the yesterday's class, I've sent you the assignment, but I haven't received from so many students. So make sure you do submit it by this weekend and submit it to me. Okay. All right then. That's all for today.
Bye bye. Have a good day.